आपको मार देंगी। Amen. Are you getting what I'm saying? I don't feel like worshiping God. परमेश्वर की आराधना करने का मन नहीं करता। The Bible never says that you worship Him when you feel like worshiping Him. The Bible says you worship Him. बाइबल ये नहीं कहती कि उसकी आराधना तब करो जब तुम्हारा मन करे, बाइबल कहती है उसकी आराधना करो। Amen. Bible says pray without ceasing so that you may not fall into temptation. बाइबल कहती है बिना रुके प्रार्थना करते रहो ताकि तुम समस्या में ना पड़ो। Amen. So if you walk by feeling, तो अगर भावनाओं के भरोसे जियोगे your feelings will kill you. तो भावनाएं मार देंगी। How many of you? Okay, let me take an example. So Dinkar is here. Dinkar, can you stand up? Okay, he's a professional bodybuilder. वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है दिनकर। Okay. So he trained himself by going to gym. Dinkar, did you go to gym only when you felt like going to gym? सो उसने अपने आप को प्रशिक्षित किया जिम जा करके। क्या वो सिर्फ तब गया जब उसका मन करा कि आज मैं जिम जाता हूँ? Everybody wants a body like that. हर एक को चाहिए कि मेरा शरीर वैसा हो। Everybody wants six pack. हर एक को सिक्स पैक चाहिए। Am I right or am I wrong? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Every girl wants to be in perfect shape. हर एक लड़की को परफेक्ट शेप में होना है। Every boy wants to play guitar. हर लड़के को गिटार बजाना है। Why doesn't it happen? ऐसा होता क्यों नहीं है? Because we go by feelings. क्योंकि हम भावनाओं के भरोसे जीते We हैं। go to gym first day. पहले दिन जिम जाते हैं, We do gym. जिम करते हैं, And like, now I don't feel like going to gym. बोलते हैं अब मन नहीं कर रहा जिम जाने का। And the Bible says, hey Dinkar, thank you. And the Bible says, और बाइबल कहती है for the bodily exercise profits little. कि जो शारीरिक व्यायाम है उससे थोड़ा फायदा होता है। So go to gym. It's तो जिम amazing. जाओ, बहुत अच्छा है। Okay. Are you not seeing Ram's Dole? आपको राम भैया के डोले दिख रहे होंगे। From 14 to 16. 14 से 16 इंच। So your pastor has 16 ka dola. Hallelujah. But that means going there even when you don't feel like going to लेकिन gym. इसका ये मतलब है कि वहाँ जाना जब मन नहीं कर रहा है तब भी। When your flesh says, रहने दे आज बहुत थक लग रही है. जब आपका शरीर मना कर रहा है थकावट के कारण, But you have a goal. लेकिन आपके दिमाग में You have a picture. एक तस्वीर And है you say, no, if I want to achieve that, और आप कहते हो अगर वो तस्वीर चाहिए मुझे then I will not live by feelings. तो मैं क्या महसूस करता हूँ उसके भरोसे नहीं जीऊंगा। Amen? Because if you live by feelings, your feelings will kill you. क्योंकि अगर इनके भरोसे भावनाओं के भरोसे जिए तो वो मार देगी। Amen? Feelings are deadly. भावनाएं खतरनाक होती हैं। Amen? And in the same way, you have a spiritual stature. और उसी तरह से एक आत्मिक कद काठी आपके पास है। Okay? The Bible says we are growing into the stature of Christ. बाइबल कहती है हम यीशु मसीह के डील डॉल में बढ़ रहे हैं। Some people say, I cannot read Bible. कुछ लोग कहते हैं मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता। क्यों हाथ बंधे हैं क्या आपके? It's just an excuse. सिर्फ बहाना है। मैं मन ही नहीं करता. Go pick up your Bible and read it. जाओ बाइबल उठाओ पढ़ लो। What's stopping you? क्या रोक रहा है? Satan comes in your room. He ha. तुझे मैं बाइबल नहीं पढ़ने दूंगा. If you are that person, then you need to renew your mind. ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता कि शैतान आके आपके हाथ पकड़ लेता है। अगर होता है तो आपको मन में आके करने की जरूरत है। Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? If you want to be a champion, अगर आप महारथी बनना चाहते हो then you don't have to live by your feelings. तो भावनाओं के भरोसे मत जियो। And majority of church lives by feelings. और ज्यादातर कलीसिया भावनाओं के भरोसे जिंदगी जीता है। Majority of church don't know the power of fellowship. ज्यादातर कलीसिया को संगति की क्या शक्ति है वो नहीं पता। That's why their spiritual life is like a yo-yo Christianity. इसीलिए उनकी जो आत्मिक जीवन है वो लट्टू की तरह है। Don't be a yo-yo Christian. ऐसे मसीह ना बने। Amen? You should be a believer when people see you 5 years before, you are on the mountain top. When they see you after 5 years, you are on a greater mountain top. And next 5 years, you have conquered more mountains. Amen? आप वो विश्वासी होने चाहिए हो जिसको किसी ने 5 साल पहले देखा हो तो पहाड़ी के ऊपर हो, अगले 5 साल बाद वो उससे बड़े पहाड़ पर जय पा चुका हो, उसके 5 साल बाद उससे बड़े पहाड़ पर जय पा चुका हो। Amen? Oh brother, God is the God of mountains and the God of valleys. ओ भाई प्रभु पहाड़ों और खाइयों का परमेश्वर है। Who told you to go to valleys? किसने बोला खाई में जाने के लिए?
Jesus said, you are a city set on a mountain top. यीशु ने कहा तुम वो शहर हो जो पहाड़ के ऊपर बसाया गया है। Did he say that in summer you will be on mountain top, then on winter you will come in the valley? क्या उसने यह कहा कि गर्मियों में पहाड़ों पर और सर्दियों में खाई में रहना? Don't blame God when we don't walk by faith. परमेश्वर पे इल्जाम मत लगाओ जब हम विश्वास से नहीं जी रहे तो। God has one place for you. God has one will for you, and that is victory in every area of your life. परमेश्वर के मन में आपके लिए एक जगह है, एक स्थान है और वो है जय। Victory in every area. जय आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। Some people are like, what does God want from me? कुछ लोग पूछते हैं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है? God wants you to thrive in every area. वो चाहता है कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उन्नति करते चले जाओ। That means you have amazing relationships with your family members. इसका मतलब आपके रिश्ते बहुत अच्छे हों आपके परिवार के साथ। That means you are thriving in your finances. आपके पैसे में आप खूब सफल हों। That means you are emotionally thriving. अपनी भावनाओं में आप सफलता पाएं। You are healthy in your body. अपने शरीर में स्वस्थ हों। There is no area of defeat. कोई हार का क्षेत्र हो ही नहीं आपके आसपास। You know, God has never known defeat. आप जानते हैं परमेश्वर को हार नहीं पता क्या होती है? Yeah, God's nickname is victory. उसका घर का नाम, परमेश्वर का घर का नाम जय है। वीरू भी है, because he is brave as well. So he is Jay and Viru. तो वो जय और वीरू दोनों है। Amen. And that's why Bible says in 1 John 5:4 that everyone who is born out of God overcomes this world. God has only produced world overcomers. इसीलिए पहला यूहन्ना 5:4 में उसका वचन कहता है जिस किसी ने परमेश्वर से जन्म लिया है वो इस दुनिया पे जय पाता है। परमेश्वर ने केवल इस दुनिया पर जय पाने वालों को ही जन्म दिया है। Come on, turn to your neighbor and say, you are an overcomer. अपने पड़ोसी को बताएं तुम जयवंत हो। Me? मैं? Some people are like, me? कुछ लोग हैरान है मैं? Yes, you. हाँ आप। Come on, turn to your neighbor and say, you. अपने पड़ोसी से कहें आप। But I don't feel like I walk in victory. लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं जय में जीता हूँ। You don't have to feel it. महसूस नहीं करना है। God never says feel it. He said believe it. परमेश्वर ने कभी नहीं कहा महसूस करो, उसने कहा विश्वास करो। Amen. You don't have to feel it. महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। Do you feel your brain? अपना दिमाग महसूस होता है किसी को? You don't have to feel it. महसूस करने की चीज You नहीं है। have to believe it. मानना है बस। Okay? I always said it. God has said it. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर ने बोल दिया है। Come on, say this after me. God मेरे has साथ said बोलो, it. परमेश्वर ने बोला है, I have believed it. मैंने मान लिया है And that settles it. और मामला खत्म। Amen. You don't need to take your opinions from Bua and Masi and Chacha and Pupa and Tao and your friends because they will mess up. आपको आसपास के लोगों की राय लेने की जरूरत नहीं है आपके बारे में कि आप कौन हो। परमेश्वर ने जो बोला है उतना ही मामला खत्म है उतने में। Amen. Let God's word be the final verdict in your life. परमेश्वर का वचन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकारी हो आपके लिए क्या कहता है वो। If he is saying that anyone who is born from me are overcomers, then it means you are overcomers, whether you feel it or you don't feel it. अगर वो कहता है जिस किसी ने मुझसे जन्म लिया है वो जयवंत है तो आपको महसूस होता हो चाहे ना होता हो आप जयवंत हो। Amen. Come on, say this after me. I am an overcomer. मेरे साथ बोलो मैं जयवंत हूँ। Now, if you believe it, then you will change the way you say it. अगर आप मानते हो इस बात को अपने दिल से तो जिस तरह से कहते हो वो बदल जाएगा। And you're like, if you believe it, then there should, overcomers have an attitude. अगर आप मानते हो तो अपने आप बदल जाएगा। Faith people should have an attitude. जो विश्वास करने वाले लोग हैं उनकी एक अलग ही मानसिकता होनी चाहिए। Amen. When you know your Father, you carry a victorious attitude. जब आपको पता है आपका पिता परमेश्वर है तो आपकी जो सोच है जो आपका जीवन जीने का तरीका है वो जयवंत होगा। Look at how Jesus used to talk. एक बार खुद देखो यीशु कैसे बात करता था। He said, उसने कहा you are from the earth. तुम दुनिया के हो, I am from above. मैं ऊपर से हूँ। Amen. He said, you are earthly, I am heavenly. उसने कहा तुम दुनियावी हो मैं स्वर्ग से हूँ।
Look at his language. He said, I am the light of the world. उसकी भाषा देखो, कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ. And then he said for us, he said, now you are the light of the world. और फिर उसने हमें कहा कि अब तुम इस जगत की ज्योति हो. And that's the most strangest thing I have seen in the church, where light is afraid of darkness. और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है जो मैंने कलीसिया में ही देखी है, केवल जहाँ पे ज्योति अंधकार से डरती है. The light is sitting in the room. जो रोशनी, जो ज्योति है वो कमरे में बैठी हुई है. और गर्मियों में electricity cut. और लाइट चली गई गर्मी में. Light saying, Mummy! You are the light, man. Light. आप ज्योति हो Behave जगत like की. light. Know that you are light. ज्योति की तरह जियो. Amen? If God opens your eyes, अगर परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे, the demons are saying, Mummy! तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हैं आपको देख के This person has known his identity. कि इसको मालूम हो गया ये कौन है. Amen? Are you getting what I'm saying? Satan comes to mess up with you. You know, Delhi people say it a lot. पता है मेरा बाप कौन है? दिल्ली के लोग बहुत बोलते हैं ऐसा, मेरा बाप कौन है, मेरे बाप को जानता है. So we need to know that. तो हमें पता होना चाहिए. You know, उर्दू में हम लोग वो बोलते हैं ना प्रार्थना, ए खुदा हमारे बाप चश्मे बदूर, क्या हुआ? Okay, so I have not started my message. मैंने संदेश शुरू नहीं किया अभी. So should I start my message? संदेश शुरू करो. Okay, very nice. Hallelujah. So we live by faith. So हमें विश्वास की जिंदगी जीनी है. We walk by faith. उससे विश्वास से चलना है. Amen? You not only live by faith, walk by faith, you pray by faith. केवल विश्वास से जीना और चलना ही नहीं, लेकिन विश्वास से प्रार्थना भी Some करनी है. believers say, कुछ बिलीवर्स कहते हैं, विश्वासी कहते I've हैं, prayed. मैंने प्रार्थना की है, God doesn't hear me. प्रभु सुनता ही नहीं है. And that's the problem. यही तो दिक्कत है, Because you're not praying by faith. क्योंकि आप विश्वास से प्रार्थना नहीं कर रहे हो. Prayer without faith is time waste. बिना विश्वास की प्रार्थना समय बर्बादी है. Jesus said in Matthew 6, he said, don't pray like the hypocrites because they think they will be heard because of their much speaking. मत्ती 6 में यीशु ने कहा, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो क्योंकि उनको लगता है कि ज्यादा बड़बड़ाने से उनको सुना जाएगा. Amen? Sometimes we behave weird with God. कई बार हम बहुत ही अजीब सा व्यवहार करते हैं परमेश्वर के साथ. You don't have to say खुदावंदा 30 times in 1 minute prayer. 1 मिनट की प्रार्थना में 30 बार खुदावंदा बोलना See, जरूरी है. if you know he's a person, talk to him like a person. आप जानते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति है, उससे आप एक व्यक्ति की तरह बात कर सकते हैं. ओ खुदावंदा हम ये कहते हैं खुदावंदा कि खुदावंदा तू खुदावंदा दुनिया खोल दे खुदावंदा, और खुदावंदा तू ये कर दे. If I talk to Sam like that, अगर हम आपस में से बात करें तो कैसा होगा? सैम पता क्या हुआ? सैम फिर ना मैं आ रहा था सैम, और सैम क्या हुआ ना सैम, वहां में बहुत ट्रैफिक था सैम, और सैम से भाई क्या दिक्कत है? What is the problem? When you say Jesus, he says yes. जब आप बोलते हो यीशु तो वो सुनता है और कहता है हाँ. Amen? You are not heard because of your much speaking. ज्यादा बड़बड़ाने के कारण आपको नहीं सुना जाता है. You are heard because you are a son and you are a daughter. आपको इसलिए सुना जाता है क्योंकि आपका जो दर्जा है परमेश्वर के सामने, आप उसके बेटे हो, उसकी बेटी हो. The Bible says that the heirs of God are inclined towards the prayer of the righteous. बाइबल कहती है परमेश्वर के कान धर्मी जन की प्रार्थनाओं के लिए झुके रहते हैं उसको सुनने के लिए. So today is Father's Day, so all the mom and dad, you know, if your kids are in next room, you know, you are so focused on what they are doing, their voice. You जितने know, if माता they पिता cry, यहाँ हैं, you will quickly go and attend to them. जितने माता पिता हैं यहाँ सबको पता है, जब आपके बच्चे बगल वाले कमरे में हों, हल्की सी आवाज को भी आप सुन लेते हो और भागते हुए जाते हो उस कमरे में क्या हो गया था. Many times some people would come to my home, कई बार लोग and मेरे घर आते Eliana हैं and Amaya are in another room, और एलियाना मैं दूसरे कमरे में खेल and रहे they are हैं saying something, and all my focus is that they won't hurt, or you know, they won't cry or get hurt, और जो लोग मेरे घर आए हैं वो मुझसे बात कर रहे हैं, पर मेरा पूरा ध्यान है एलियाना माया की ओर कि उनको चोट ना लगे and they हो. are continuously saying something. और ये कुछ बात कर रहे हैं I was मुझसे like- और मैं कह रहा हूँ I was हाँ. like, मैं कुछ नहीं सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो. My all attention is there. मेरा पूरा ध्यान वहाँ पर बच्चों की ओर है. And if we being imperfect, और अगर हम लोग जो असिद्ध हैं फिर भी
if our attention can be so much towards the cry of our children, how much more will Heavenly Father be attentive to your voice? अगर हम लोग असिद्ध होते हुए भी अपने बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं तो कितना ज्यादा हमारा स्वर्गीय पिता जो हम बहुत अच्छा है। So how do we pray? तो हम कैसे प्रार्थना करें? We pray by faith. हम विश्वास से प्रार्थना करें। Amen. James 5:14 says, "Is there anybody sick among you? Let them call the elders of the church. Let the elder of the church anoint them in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save this." It's not the prayer that saves the sick. It's the prayer of faith that saves the sick. और याकूब 5 और बाइबल कहती है कि क्या तुम्हें कोई बीमार है वो कलीसिया के अगुओं को अपने घर बुलाए ताकि वो तेल से अभिषेक करें, तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, और जो विश्वास की प्रार्थना है उससे जो बीमार है वो चंगा हो जाएगा। वो केवल ये नहीं कहती प्रार्थना से बीमार चंगा होगा, वो कहती है विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा होगा। Amen. So we pray by faith. तो हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं We give by faith. और विश्वास से देते हैं। We receive by faith. विश्वास से ही हम ग्रहण करते हैं। Amen. Anything in the kingdom, you do it by faith. जो कुछ हम राज्य में करें वो विश्वास से ही कर सकते हैं। If you're not doing it by faith, अगर विश्वास से नहीं करते it's a Christian ritual. तो वो एक ईसाई रीति रिवाज है। If you take communion without faith, अगर बिना विश्वास के कोई प्रभु भोज ले powerless. तो उसमें कोई शक्ति नहीं है। If you take baptism without faith, बपतिस्मा बिना विश्वास के Christian ritual. ईसाइयों का रीति रिवाज है। If you pray without faith, बिना विश्वास के प्रार्थना करें you are a clanging cymbal. तो आप केवल आवाज करती हुई If you read the Bible without faith, अगर आप बाइबल बिना विश्वास के पढ़ें it will just make you religious. वो केवल आपको धार्मिक बना But देगा। if you add faith into it, लेकिन अगर इन सब बातों में विश्वास मिला the दें same thing becomes so powerful. यही सारी बातें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं। Because the Bible says, just shall live by faith. क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहें। Amen. And specifically when you are in Delhi, खासकर जब आप दिल्ली में रहते हो, hallelujah, for the air is so pure here. क्योंकि यहाँ की हवा इतनी साफ है। Just shall live by faith. धर्मी जन दिल्ली में तो विश्वास से ही जिंदा रह सकता है। Amen. When all the vegetables and all the, it's like pesticides and all the chemicals. जब सब सब्जियों में सारे केमिकल डाले हुए हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं। मेरे एक फ्रेंड ने बताया, उसने ना उन्होंने रात में एक लौकी ली होगी, सो लौकी उन्होंने फ्रिज के अंदर रखी, तो वो पावर लौकी सुबह आधे किलो की बन गई, बिकॉज there was pesticides and all the growth hormones. Even the chickens, इतना सा चिकन है उसमें स्टेरॉइड डालेंगे 2 किलो का चिकन हो जाता है, and all you're eating is that. तो जो कुछ आप खा रहे हो उसमें ये सब है। But some Christians say, no, आज के बाद हम चिकन नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ मसीह लोग फिर कहते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे। हवा भी खाओगे तो मर जाओगे, दिल्ली की हवा भी वैसी है, क्या क्या नहीं खाओगे और क्या क्या खाओगे। Amen. So there is only way to live, that is living by faith. केवल एक ही तरीका है जीने का, वो है विश्वास से। Amen. Bible says these signs will follow them that believe, even if they drink any deadly thing, it shall not harm them. बाइबल कहती है विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि अगर वो कोई जहरीली वस्तु भी पी ले उनको कोई हानि ना होगी। Amen. That's why I drink so much Coke. इसीलिए मैं इतनी कोक पीता हूँ। Okay. Hallelujah. So Hebrews 11:1. इब्रानी 11 उसका 1। Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। Now you have to understand something. आपको इस बात को समझना है, If there is anything that you can perceive with your natural senses, faith cannot be involved there. अगर आप किसी भी बात को अपनी 5 इंद्रियों से शारीरिक रूप से परख सकते हैं, जांच सकते हैं, तो उसमें विश्वास नहीं मिला सकते, उसकी आवश्यकता नहीं विश्वास की। Faith is beyond your senses. विश्वास आपकी ज्ञान इंद्रियों से जो नहीं परखा जा सकता, जाना जा सकता, उससे आगे And इस्तेमाल किया that's जाता why है। people don't understand why they don't receive anything from God. और इसीलिए लोग नहीं समझते कि वो परमेश्वर से कुछ हासिल क्यों नहीं करते। So when they are sick, तो जब वो बीमार होते हैं, they will say, when I can see the healing with my 5 senses, then I'll believe I'm healed. जब वो बीमार होते हैं तो कहते हैं जब मुझे अपने 5 इंद्रियों से पता लग जाएगा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तब मैं मान लूंगा कि मैं ठीक हूँ। Because I can feel the pain. क्योंकि मैं अभी दर्द को महसूस कर रहा हूँ, I can see the growth. मैं वो गांठ को देख रहा हूँ, I can touch it and feel it. It's the same. मैं उस दिक्कत को छू के देख सकता हूँ, अभी भी है।
That tells us we are not operating by faith. यही बताता है कि हम अभी विश्वास को इस्तेमाल नहीं Because कर रहे। faith is the evidence of things not seen. क्योंकि विश्वास उन बातों का सबूत है जो दिख नहीं रही मुझे। That means इसका मतलब when you see nothing जब आपको कुछ नहीं दिख रहा and still you believe that you are healed, और फिर भी आप ये मानते हो कि आप चंगे हो चुके हो, then the healing will manifest in your body. तब चंगाई आपके शरीर में नजर आएगी। That means इसका मतलब you have to believe you are healed first and then you will see the manifestation. आपको पहले ये मानना है कि आप चंगे हो और तब अपने शरीर में वो बात नजर आएगी। Even though you are seeing the growth, चाहे वो आपको गांठ दिख रही हो, even though you are feeling the pain, चाहे वो दर्द महसूस हो रहा हो, even your senses are screaming that you are sick, चाहे आपकी ज्ञान इंद्रियां चिल्ला रही हो कि तू बीमार है, you went to doctor आप डॉक्टर के पास गए and doctor gave you 6 months to live और डॉक्टर ने 6 महीने बोल दिया कि 6 महीने जिंदा रहने के लिए, because they found some cancer in somebody's body. क्योंकि उसको किसी के शरीर में कैंसर दिखा रिपोर्ट में। Now that somebody अब वो जो भी है with his 5 senses अपने ज्ञान इंद्रियों से can see the report रिपोर्ट पढ़ सकता है, Can देख read सकता the है, report उसको देख सकता है, पढ़ and can सकता see है the growth. और देख सकता है क्या है उसमें दिक्कत But the दिखाई। Bible says there is one more report, लेकिन बाइबल ये कहती है कि एक और रिपोर्ट है and that is the report of the Lord. और प्रभु की रिपोर्ट है वो जो उसने दिया आपके लिए। But this report cannot be seen with your 5 senses. लेकिन जो प्रभु ने रिपोर्ट आपके लिए लिखी है वो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से नहीं पढ़ सकते, That only has to be believed. वो केवल विश्वास से ही पढ़ी जाएगी। And that's why in the book of Isaiah, इसीलिए यशाया की पुस्तक में Bible says, who has believed our report? बाइबल कहती है, सवाल पूछते हैं कि किसने हमारी बात को माना है। You know, God is so grieved. He's saying they have a report from doctor, but I also have a report for them. परमेश्वर शोकित है इस बात से, दुखी है, वो कहता है डॉक्टर से इनको एक रिपोर्ट मिली है लेकिन मेरी रिपोर्ट तो देखो। That report says they will die in 6 months, but my report says that they will live a long life. डॉक्टर की रिपोर्ट इनको कहती है कि ये 6 महीने में मर जाएंगे, लेकिन मेरी रिपोर्ट में लिखा है कि ये लंबी जिंदगी जिएंगे। And he's saying, who has believed our report? और वो ये सवाल करता है कि किसने मेरी रिपोर्ट पे भरोसा किया है। Because there are very few people that believe the report of the Lord. क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर की रिपोर्ट मानने को तैयार हैं। Because that cannot be seen or touched. You know, that is beyond your senses. क्योंकि वो रिपोर्ट आज देना चाहता हूं आपको। Church, समझें। I pray, I desire, I decree, I wish with all my heart that you will understand what faith is. मैं पूरे दिल से चाहता हूं, ये उम्मीद करता हूं कि आप समझे विश्वास क्या है। As long as you're operating with your 5 senses, you are not operating with faith. जब तक आप जो दिखता है समझ में आता है उसके मुताबिक जी रहे हो, आप विश्वास में नहीं जी रहे हो। Amen? Because it's the evidence of those things which are not yet in the natural. क्योंकि विश्वास उन बातों का सबूत है जो अभी शारीरिक रूप में दिखाई नहीं देती। Amen?